ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Pranams to everyone. Pranam to all. I'm really very happy and delighted here to welcome and to greet my elder brother Sri Sajdanand Bharti ji, and it's a great occasion for me. I met him for the first time perhaps way back in 1975. I was studying in the 11th standard, and he joined Gopeshwar Government PG College for his graduation. And that was the time. Since then, he influenced not only one generation, but I understand since then around 3 generations of students have been influenced by his work, not only at Gopeshwar but at Pan Uttarakhand level. His journey for social work and as a teacher, as a guide, as a philosopher has been impeccable. I attribute many of the good deeds which have come from the students of this region to Bharti ji, Bade Bhai Sahab, our elder brother Sri Bharti ji. He put the seed of social work. That time itself in 1975, I joined programs of Nirmana Samiti which he formed with the students at Gopeshwar, which used to take some social works not only for the cleaning of the city but plantation, forestation and others also. He was actively involved in the Chipko movement way back in 70s, and I remember that for the first time in Josimat, when Josimat was under the landslide, which still is there. He was there for 45 days for a plantation campaign in Josimat below, and creating environmental awareness in that area. During his life, he served in the many positions, including he was the member of the Uttarakhand Planning Commission also, and his work is considered one of the very innovative work for water conservation and forest in the region. And as I have circulated, we have seen from his brief bio that Honorable Prime Minister in 2021 attributed his work and referred to his work of water conservation in his Mann Ki Baat speech. So welcome, sir, Professor Bharti ji, and my elder brother, and thank you for accepting our request for speaking today. And I am also delighted today, Sri Yogeshwar Kumar ji. He is my another elder brother who has joined today. I requested him to be here today. He will be speaking after 2 weeks in the same platform about his work and experience. Sri Yogeshwar Kumar ji is also an amazing person. I met him way back in 76 or 77 when he was in Himalaya region working for the providing energy services for the Himalayas, and throughout his life journey he did the same thing. I welcome you, Kumar sir, and all others also. Now I request Bharti ji to speak, and any language that people understand the language here very well, whether Hindi or Angrezi, that is not an issue. So you can feel free, and perhaps we will be talking for 45 minutes or so, and 15 minutes for question answers if it is so. Thank you. Pranam to all. सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सच्चिदानंद भारती इस समय उफरैंखाल एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से आप सबके साथ दूर कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हूँ। मैं सबसे पहले विवेकानंद केंद्र के आदरणीय श्री वासुदेव जी, उनकी टीम को, यहाँ पर उपस्थित महान भावों को और अपने मित्र प्रकाश मैठानी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे 45 साल के से भी अधिक के सामाजिक जीवन को 45 मिनट में रखने का जो सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया, ये मैं इससे बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एक कहानी के रूप में अपनी बात
एक स्लाइड शो के माध्यम से आपके पास मैं रखूंगा। और विशेष करके क्योंकि जीवन में तो बहुत से दिशाओं में काम होता है, लेकिन जो पानी और जंगल का काम लोगों के साथ मिलजुल करके इस पीछे के इलाके में जहाँ की खबरें हमेशा विपत्ति की रही हैं, पहले तो दूसरे तक की रहती थी, लेकिन कुछ समय से, कुछ शताब्दी से, ऐसी खबरों का जो मुल्क बन गया है हमारा उत्तराखंड। ऐसे में एक इलाका ऐसा जहाँ की पानी को भी सुरक्षित है, जंगल भी सुरक्षित हैं, लोग भी सुरक्षित हैं, और कैसे ये सब मिलजुल करके हुआ, इस सब की एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने 45 मिनट में से भी कम समय में रखने की कोशिश करूंगा। फिर अगर जो जैसे जैसे बातचीत होगी मैं अपनी बात को आपके सामने बोलूंगा। धन्यवाद। अब मेरे साथ एक मेरी आईटी टीम में जो एक शिवाशीष डोंडियाल हैं, ये ऐसे कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं और ये इसमें सहयोग कर रहे हैं मुझे। तो ये शुरुआत है, पानी राखो मूवमेंट एक हमारा जो है, उसके नाते इन्होंने स्लाइड बनाई है शुरुआत की। आपका सबका इसमें स्वागत है। ये एक जहां मैं रहता हूं, उफरे खाल एक जगह है, ये 6000 फीट की ऊंचाई की जगह है, और ये किसी जमाने में केवल क्लिक थर्ड एक कैमरा होता था, जो छोटे कैमरे से केवल हिमालय की सुंदरता के लिए फोटो खींची गई थी। इसमें दूर नंदा देवी का सबसे पहले पर्वत है, फिर त्रिशूल है, फिर नंदा खाट है, फिर पंचाचूली है, और आखिर में आदि कैलाश है जहां मोदी जी गए थे। ये इतनी बड़ी रेंज उस इलाके से दिखती है जहां पर मैं पढ़ाता था और जहां ये काम हुआ। और उसके बाद ये पहाड़ियां हमारे इलाके की हैं, वो उत्तराखंड का। ये एक केवल यूं तो हिमालय के लोग यहाँ तो जानते हैं, रोज हिमालय देखते ही हैं, पर आप कन्याकुमारी में हैं तो इसलिए ये स्लाइड शुरुआत के लिए रखी है। ये मानसरोवर है जिसको अधिकांश लोग जानते ही हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि हिमालय में ऐसी बड़ी बड़ी झीलों का मुल्क रहा है, और जहाँ से पानी के इतने बड़े मीठे पानी के जो हमारी पूंजी है वो वहाँ पर जमा है, और उन मीठे पानी के सरोवरों से ही हमारे लिए जीवन देने वाली नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट, ये गंगोत्री से आगे करीब 18 किलोमीटर आगे गौमुख का है। ये सन 82 का चित्र है, और ये देखो तब गौमुख काफी हद तक बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये अक्टूबर के आसपास का फोटो ले रखा है, और इसमें देखो गौमुख काफी सुरक्षित है सन 80 के आसपास भी। अब इसी जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, अब गौमुख पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अध्ययन हुए हैं, और अभी जो एक उसकी अध्ययन की वो आई है कि पिछले 60 सालों में ये करीब 30 किलोमीटर यानी हर साल आधा किलोमीटर पीछे जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि 24-25 फीट, 30 फीट, 40 फीट पीछे जाता है, लेकिन अभी पिछले 60-70 सालों में बड़ी तेजी से घटने में लगा है। नेक्स्ट, ये यमुना जी का जल ग्रहण क्षेत्र है। किसी नदी को कैसे बनती हैं नदियां, इस छोटे से चित्र से आप देख सकते हैं कि ऊपर हिमालय है, फिर हिमालय के बाद नीचे की ओर वन है, जंगल और हिमालय के बीच में एक छोटा सा बड़ा पैच होता है। 9000 फीट या 10,000 फीट के बाद जो होता है पेड़ों की लाइन खत्म हो जाती है, और 18,000 से 20-21,000 के बाद वृक्ष हिम लाइन शुरू हो जाती है, स्नो लाइन शुरू हो जाती है। तो स्नो लाइन और ट्री लाइन के बीच का जो इलाका है इसको हमारे यहाँ बुग्याल कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हुआ। यहाँ फूलों की घाटी से लेकर के वैली ऑफ फ्लावर से लेकर के इस तरह की अनेक घाटियां इस इलाके में होती हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका होता है, और ये वास्तव में नदियों का प्राण क्षेत्र है। यही वो क्षेत्र है कि जहाँ 6 महीने बर्फ रहती है, और वो 6 महीने की बर्फ इसकी मिट्टी के भीतर बैठी रहती है, और वो मिट्टी के भीतर बैठी हुई बर्फ ही धीरे धीरे पिघल करके नीचे पानी के स्रोतों को तैयार करके नदी खड़ा करती है। तो अगर ये क्षेत्र खत्म हो जाए, ऊपर हिमालय, फिर वो उसका जो बुग्याल क्षेत्र है, और फिर जंगल, तो फिर नदी को बचाना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि नदी को हम माँ कहते हैं।
पर नदी की भी माँ है। तो नदी का माँ ये पेड़ है, पेड़ों की माँ तालाब है या बुग्याल है, और उसकी माँ हिमालय है। तो इस तरह से ये एक पूरा जीवन तंत्र है। इन पे एक पर भी जब हम छेड़खानी करते हैं, एक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सबको नुकसान पहुंचने लग जाता है। नेक्स्ट, ये एक हमारा इलाका है, जिस इलाके को मैं पढ़ाता हूँ, जहां पर मैं पढ़ाता था। ये ऊपर आप देखेंगे, इसके मेरे हाथ से जा रहा होगा ये चित्र ऐसे। हाँ, सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर आप देखेंगे तो बादलों के नीचे एक आपको पेड़ों की हरी लाइन दिखाई देगी, और ये जंगल है। जंगलों के बाद ये चौड़ी पत्ती के जंगल हैं। उस जंगलों के बाद अगर आप नीचे को देखेंगे तो गांव हैं, और इन गांव के बाद नीचे की ओर बड़े हरे भरे खेत हैं, और बीच बीच में फिर नदियों के स्थान है। तो ऊपर जंगलों से पानी छूटता है, नीचे गांव की ओर आता है, और फिर खेतों में रहता है, और फिर नीचे इस तरह से बसे होते थे पुराने गांव। तो इनमें एक पूरा सिस्टम था, और इस सिस्टम को अगर हम ऊपर जंगल खाली कर देंगे, ऊपर ये सिस्टम को खाली कर देंगे, तो ये स्रोत सूख जाएंगे, फिर खेती बाड़ी सभी कुछ चिन्हन हो जाता है। इस तरह से ये गांव हमारे इलाके में रहते थे, पहाड़ों में। नेक्स्ट, अब देखिए ये ऐसा पहाड़ बन गया। इसमें ऊपर का जो बेल्ट है, वो जहां हरी बेल्ट दिखाई दी थी, उस हरी बेल्ट में पूरी तरह से खाली हो गया जंगल। तो नीचे की बस्ती भी पानी के बगैर उजड़ गई, और फसल भी खत्म हो गई। अब वो बंजर खेत अवश्य हमको दिखाई दे रहे हैं, लाल मिट्टी दिख रही है, ऊपर लाल पहाड़ दिख रहा है जो कभी हरा भरा होता था। इसके पीछे के बादल भी खत्म हो गए। दुनिया में कहीं भी अगर पहाड़ों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर ऐसी ही स्थिति देखने को आती है। ऐसे ही अपने राजस्थान में अरावली को भी कहते थे कि बहुत साल पहले अरावली में बादल बैठते थे, लेकिन अब तो नहीं बैठते, क्योंकि वो सारी चीजें खत्म कर दी हमने जो बादलों को अपनी ओर खींचते थे, यानी जंगल, वो घने जंगल जो वहां होते थे। यदि हम जंगलों को खत्म कर देंगे तो ये इसी को लौटाने के लिए हमने काम शुरू किया। नेक्स्ट, अब ये स्कूल है, ये 1981 का चित्र है। 1981 में ये चित्र भी क्लिक इसलिए लिया गया कि शुरू उसी दिन बर्फ गिरी थी, और बर्फ को कैद करने के लिए ये लिया गया। ये कभी इस फोटो का सौभाग्य है कि इसको दूर कन्याकुमारी में आज विवेकानंद केंद्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ऊपर देखिए आप कि वो लाल पहाड़ है। ये पीछे एक बिल्डिंग से आप देखिए, ये बिल्डिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। आगे एक फील्ड है, इसका एक बड़ा फील्ड है जो बर्फ से भरा हुआ है, और पीछे पूरा लाल पहाड़ है। ये चित्र है 1981 का, 1981 का ये चित्र है। और आज मैं फिर आपको इसी चित्र को दिखाऊंगा, इसी जगह पर से आप देखेंगे जहां बिल्डिंग के पीछे के ये एक दो पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2022 का चित्र देखिए। 2022 में ये पेड़ इस तरह से आगे जो खड़े हैं, फील्ड की स्थिति देखिए काफी ठीक हो गई, और पीछे पूरा इसका जंगल चला गया। वो पीछे का जो लाल पहाड़ है वो पूरा हरा भरा जंगल के रूप में हमने डेवलप किया उसको, और उसको अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमने उसको हरे भरे पहाड़ के रूप में डेवलप किया। और वहां पर वो पेड़ लगाए जो यहाँ की वनस्पतियों के अनुकूल हो। ये देखिए पीछे का पहाड़ पूरा वो हरा भरा पहाड़ बन गया है, वो जो लाल पहाड़ आपको दिखाई दे रहा था। इसके पीछे ये कोई लोगों की बड़ी मेहनत रही है। लोगों के साथ इस काम में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ मिलजुल करके ये काम खड़ा किया गया, और इसमें लोगों का प्यार है। ऐसे जंगल खड़े किए गए जो लोगों को पसंद थे। यानी हमारे यहाँ जिन जंगलों से घर बनते हैं, जिन जंगलों से घास लाते हैं, जिन जंगलों की लकड़ी से हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, जानवरों के नीचे सूखी पत्तियां ला करके डालते हैं, जो जंगल हमारे नित्य प्रयोग में सहयोगी होते हैं, ऐसे जंगलों को खड़ा किया, ऐसे पेड़ों को हमने खड़ा किया। तो लोगों ने उसमें रुचि दिखाई, दूर जाने के बजाय उनके नजदीक जंगल बनना तैयार हुआ, और एक जो लाल पहाड़ थे वो धीरे धीरे हरे पहाड़ में बदल गए। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर एक टेम्पल है। इस टेम्पल को आप देखिए, ये टेम्पल उफरे माता का है। पहाड़ों में हिमालय में नंदा देवी माता का बड़ा स्थान है, और कहा जाता है कि हिमालय की रचना में नंदा माता का बहुत बड़ा योगदान है। तो हिमालय की उत्पत्ति कहते हैं कि नंदा माता के आशीर्वाद से हुई। नंदा माता की छोटी बहन है उफरे माता। ये उफरे माता का मंदिर है,
और ये इस टेम्पल को गोल किया गया है, इसके ये वन देवताओं की माता मानी जाती है। अब आप ये भी केवल 1985 की फोटो है। 1985 में आपको इसलिए इस फोटो को खींचा कि बर्फ पड़ी हुई है और ये बर्फ से देखिए स्नो, यहाँ से स्नो गई और ये सीधे जहाँ कॉलेज की मैंने पहली फोटो आपको दिखाई थी, ये कॉलेज का इलाका है, ये जहाँ वो बिल्डिंग थी। और ये पूरा इलाका आप देखो कि कैसे बर्फ से भरा पड़ा है और कैसे खाली और जगह जगह खाली 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 इसमें खाली स्थान पड़े हुए हैं। अब आज की स्थिति आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये टेम्पल याद रखेंगे आप, टेम्पल को देख करके आप इलाके को पहचान जाएंगे। ये देखिए ये टेम्पल है, वो टेम्पल है। और ये टेम्पल के बाद का आप चूंकि मोटर सड़क बन गई, घर बदल गए, लेकिन इलाका भी उतना ही हरा भरा हो चला है और पूरा इलाका कैसे एक पूरे जंगल में एक हरियाली में तब्दील हो गया। ये किसी प्रोजेक्ट से या किसी सरकारी फंड से या कहीं से फंड से नहीं हुआ, ये लोगों की अपनी मेहनत से, लोगों के द्वारा तैयार किए गए कार्य से हुआ है। यही इस कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण इसको आज यहाँ पर प्रकाश जी ने कहा होगा कि आप इस काम को देखिए, क्योंकि इसमें लोगों का प्यार है और इसीलिए ये सस्टेनेबल है कि इसमें लोग ही खड़े हुए, लोगों ने नर्सरी बनाई, लोगों ने गड्ढे बनाए, पेड़ लगाए और बरसों इसकी देखभाल करी। 85 से और 22 के बीच में ये देखिए 17 साल लग गए इतने बड़े जंगल को खड़ा करने में। 17 साल का धीरज रखना पड़ा और आगे भी बड़ा धीरज रखना पड़ता है इन कामों में। कोई 5 साल या 3 साल, अपनी प्लानिंग कमीशन में तो 5 साल के लिए तैयार कब होती है ना। हम लोग प्रोजेक्ट लाते हैं, 3-3 साल के प्रोजेक्ट लाते हैं, तो समाज या जीवन कोई 3 साल 5 साल पे नहीं टिकता। इसके लिए सदियों का, पहले तो सदियों का, नहीं तो कम से कम दशकों का धीरज रखना पड़ता है और वो समाज रखता है। जब उसके हित की कोई बात आती है, उसके पसंद की कोई बात आती है, उसकी आवश्यकता की कोई बात आती है, तो वो समाज वहां पर खड़ा हो जाता है। उपरंग खाल की इस छोटी सी कहानी में आज 200 से ज्यादा गांव इसी तरह के हरे भरे हुए हैं, उनके जंगल खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 जंगल आप लोगों को दिखाए, क्योंकि मुझे और पानी के काम को आपको दिखाना है और आप सबका प्यार इस काम को मिले, इस लिहाज से मैं अब आपको पानी के काम पर ले चलता हूँ। नेक्स्ट, ये देखिए ये चौखंबा है, चौखंबा के नीचे केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी की घर, इसी के नीचे ठीक एक ये देवरिया ताल है। ये देवरिया ताल के ठीक नीचे प्रकाश मैठानी का गांव है। प्रकाश मैठानी जी के कारण ही मैंने इस स्लाइड को रखा है। देवरिया ताल का मतलब जिसमें देवता रहते हैं, देवताओं का रहना है, जहां देवताओं ने अपने रहने के लिए, अपने नहाने के लिए जो तालाब बनाया, ये प्राकृतिक तालाब है। अब ऊंचाई पर इसी तरह के प्राकृतिक तालाब हिमालय में एक नहीं अनेक हैं। जैसे नैनीताल का नाम तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन नैनीताल के अलावा भी हिमालय में जगह जगह तालाब हैं और शुरू में मैंने आपको मानसरोवर तो दिखाया ही था। तो इस तरह के तालाबों की रचना हिमालय में होती रही थी और होती थी। तो अब जो लोगों ने, ये तालाब क्या है, कच्चे हैं, इनमें कोई सीमेंट नहीं है, इसमें कोई पत्थर नहीं है, ये मिट्टी के आकार में बने हुए तालाब हैं और इनका पानी धीरे धीरे इनके नीचे जो गांव होते हैं उन गांवों में जाता था और वो गांव के स्रोतों को जिंदा रखता था, जंगलों में नमी भी रखता था। इसीलिए पहले हिमालय के जंगलों में आग नहीं लगा करती थी। अब ये जब घटनाएं समाज ने अपने अनुभव से इसी प्रकार के छोटे छोटे तालाब बनाए, उसी को चाल या खाल कहते हैं। जैसे नेक्स्ट, इसमें नहीं है। ये एक चाल खाल है जो ऊपर जो प्राकृतिक नहीं है, लोग बनाई गई है। पर इसमें देखो बरसात का पानी आया और बरसात का पानी नीचे जमा हो गया और ये पानी इसका गर्मियों भर ये जो है ये पानी यहाँ पर टिका रहेगा। फिर हिमालय में ऐसा है कि करीब 90 दिन में या उससे पहले भी एक आध बरखा हो ही जाती है और जैसे ही बरखा होगी बरखा का पानी इसमें आएगा और ये तालाब फिर भर जाएगा। तो वर्षा जल के संरक्षण का ये एक तरीका था और ये गर्मियों में जानवरों के लिए पीने का पानी, यात्रियों के लिए पीने का पानी और उस स्थान को घास इत्यादि को सींचने का स्वतः एक प्राकृतिक काम करता था। ये चाल खाल क्या होती थी
ये करीब 30-32 कदम लंबी, 30-32 कदम चौड़ी और 1-2 कदम माने पांव के चलने की, एक पांव से दूसरे पांव तक जब चलते हैं उसको कदम कदी, यानी 2-3 फीट। तो इस तरह का इनका माप होता था, समाज इसको बनाते थे। नेक्स्ट, ये गर्मियों में इतनी खूबसूरत हो जाती थी, देखिए इसके इनके आगे तालाब निकलते थे, फूल निकलते थे। ऊपर पीछे एक नंदा देवी का चोटी दिख रही है, और नंदा देवी की चोटी, इतना साफ पानी इनमें, ये इसमें नीचे जल स्रोत नहीं है, ये सारा वर्षा का पानी रुका है। लेकिन कितना सफाई खुद प्रकृति करते हैं, एक माचिस की तिल्ली तक आपको इसमें नहीं मिलेगी। लोग इतनी स्वच्छता से इन तालाबों को रखते हैं, और उसमें देखो नंदा देवी का चित्र दिखाई दे रहा है। लोग आते हैं, देखते हैं और पानी पीते हैं इन तालाबों का, जानवर भी पीते हैं। नेक्स्ट, इस तरह का एक तालाब हमने उपरखाल में भी बनाया, ये बहुत बड़ा तालाब है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, ऊपर से एक ढाल था, जैसे अगर आप पहाड़ों में कहीं आए होंगे, नैनीताल वगैरह, और नीचे से एक दीवार इसकी बना दी, तो इसमें लाखों लीटर पानी जमा हो गया, केवल सिर्फ 4 फीट एक दीवार, ऊंची दीवार को बनाने से। और ऊपर का सारा इसका क्षेत्र आधा किलोमीटर से ज्यादा इसमें एक बड़ा तालाब बन गया। तो ये एक प्रथा थी कि पानी को रोकने की। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये आपको इन तालाबों को देखने से लग रहा होगा कि ये कोई सरकारी योजना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी तालाब किसी नाप जोक के साथ नहीं है। जब हम गवर्नमेंट के किसी काम को करेंगे या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कोई काम करेंगे तो उसकी कोई माप होगी ना, प्रोजेक्ट तो माप पे चलेगा, किसी नाप तोल पे चलेगा। ये बिना नाप तोल के समाज बनाता है, जहां पर जितनी जगह तालाब के लिए जरूरी समझता है उतनी जगह खोद देता है, और उतनी जगह खोद करके उसको रख देता है। ये देखो, ये टॉप में है, उस चोटी के टॉप में है, टॉप में उसने एक अंडाकार जैसा तालाब बनाया, और तालाब में पानी अटक गया। उसके बाद नीचे चीड़ के पेड़ है, पाइन ट्री है, लेकिन इन जंगलों में कभी आग नहीं लग सकती, क्योंकि इसका पानी उसमें जाता रहता है। कोई पॉलीथीन नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक मिट्टी को खोद करके इसको बना दिया। 3-4 फीट गहरी मिट्टी खोदी, और उस मिट्टी से में वो तालाब बन गया, और जब बारिश आएगी तो फिर पानी अटक जाएगा, और फिर ये पानी धीरे धीरे करके नीचे की ओर चला जाएगा। ये इसको कहते हैं चाल खाल बनाने का जो पुराना ढंग पहाड़ों में था। हमारे उत्तराखंड में इस तरह के हजारों चाल खाल बनती थी, लेकिन 150, 200, 300 साल ऐसे कुछ बीच के दौर आया कि जब ये परंपरा समाज से दूर होती चली गई, और दूसरे सारे कारण पानी के लिए आ गए। तो यहाँ पर मुझे केवल ये चाल खाल के बारे में आपको कहना है कि इस तरह से हमारी एक प्रथा थी, समाज इसका हल ऐसे निकालता था। नेक्स्ट, ये हमारी एक चाल खाल है, देखो ये इतनी गहरी है, ये ज्यादा गहरे भी नहीं बनाने पड़ते, कि ये 3-4 फीट गहरी है, और इसमें आराम से अगर कोई बच्चा चला जाए, कोई चला जाए, तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस तरह की भी ख्याल इन कामों में रखना पड़ता है। इसलिए इन चाल खालों को एक निश्चित अधिक गहराई पर अधिक गहरा स्वरूप नहीं देना पड़ता। गांव के भीतर काम कर रहे हैं तो गांव के पूरा ख्याल रखना पड़ता है, आसपास का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। गांव के बच्चे ग्वाले होते हैं, जंगल में जाते हैं, तो सुरक्षित रहें, सब लोग सुरक्षित रहें, उनके मनों में उसका प्यार बना रहे। नेक्स्ट, ये इस जहां पर जैसी माप देखी, ये फिर ये इस तरह से पानी का आकार दे दिया, और ये चाल खाल बन गई। ये धीरे धीरे अपने आप ही बड़े शुद्ध होती जाती हैं ये पानी, और इनमें अटकने लग जाता है, और किसी अधिकांश में फिर साल भर पानी अटका रहता है। नेक्स्ट, नहीं आया यहाँ क्यों नहीं आया? ये 2 चाल खाल यहाँ पर एक साथ बनाई गई हैं, और ये चाल खाल में देखो, ये दिल्ली, अब इन जगहों पर बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं, उफरे खाल के काम को देखने। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, IIT से, NIT और कृषि विश्वविद्यालयों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दुनिया के लोग भी आते हैं, क्योंकि यह एक अलग तरह का प्रयोग आप समझा जाता है। हालांकि ये प्रथा 150-200 साल पहले थी समाज में, लेकिन ये एक भूली हुई परंपरा को लौटाना भी एक काम बन जाता है। तो एक भूली बिसरी परंपरा को लौटा करके ट्रेडिशन जो यहाँ पर था वर्षा जल को रोकने का, उसको हमने फिर आगे जाकर के हर जगह इतनी बड़ी तालाब या इतने बड़े तालाब बनाने संभव नहीं होते पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ सीधे खड़े होते हैं,
हर जगह इतनी समतल जगह भी नहीं मिलती, तो हमने इस पे फिर अपना थोड़ा सोच करके इसकी एक नया तरीका निकाला कि हर पहाड़ पर हम इसको कैसे पानी को बचा सकें। अगर पहाड़ 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री तक का ढाल भी पहाड़ पर है, तो वहां पर भी हम कैसे पानी के काम को कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस चाल खाल के साथ साथ एक छोटा सा और उपाय निकाला, एक अपना विज्ञान सोचा समझो, और उस तरीके को निकाला और उसको जल तलैया नाम दिया। जल तलैया, जल तलैया इसलिए आपने झुमरी तलैया तो बहुत सुना होगा विविध भारती से, लेकिन ये जल तलैया माने तालाब, पानी का घर, छोटा सा घर। नेक्स्ट, ये इस तरह के चाल खाल ये वही लोग हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए गर्मियों में हमारे यहाँ का ये तालाब, ये चलने नहीं, वीडियो चलने नहीं, हाँ, ये पानी का ये तालाब जो बनाई हमने चाल खाल जंगल में। अब गर्मियों में देखिए जानवरों के पीने का कितना बड़ा सहारा है ये। जानवर पूरे पता नहीं कितने गांव की गाय जो है यहाँ पर आकर के ही पानी पी रही हैं, क्योंकि और जगह पानी के तालाब इतने नहीं बने होंगे। तो जहां लोगों ने देखी, जहां पशु देखता है कि वहां पर पानी मिलेगा, वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बड़ी भारी चीज होती है, ये एक चुपचाप बड़ा काम होता है। अगर आप किसी पशु के लिए पानी का प्रबंध करते हैं, जंगलों के बीच में इस तरह के आग से बचाने का प्रबंध करते हैं, तो ये अपने में एक अलग तरह का प्रयोग हो जाता है। और ये उफरे खाल का ये छोटी सी पानी के काम में आप देख सकते हैं कि कैसे ये चाल खाल बड़ी सुंदर ढंग से बनी है, और इनमें पानी जो है ये जानवर ये गाय पीती हुई, गाय उस पानी को पी रही हैं। नेक्स्ट, अब ये जो जल तलैया मैंने कहा, इसके लिए हमने ऐसा किया कि हर जगह उतनी बड़ी चाल खाल बनानी संभव नहीं है, तो हमने एक गोल कढ़ाई नुमा, जैसे बड़ी कढ़ाई होती है अंडाकार शेप में, एक माप दे दिया 2 मीटर लंबा डंडे का, और कहा कि इस डंडे के माप की कढ़ाई नुमा अंडाकार शेप में जल तलैया बनाई जाए। अंडाकार शेप का मतलब था कि अगर चाहे कितनी ही बारिश आ जाए, जैसे अभी उत्तराखंड में एक ही दिन में कभी कभी ऐसी बारिश हो सकती है जो राजस्थान जैसे इलाकों में साल भर में होती है, उतनी यहाँ एक दिन में हो सकती है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 100 मिलीमीटर की बारिश बोलते हैं। तो 100 मिलीमीटर का मतलब हुआ कि ऊपर से आसमान से नदी का ही आना। तो उसको थामने के लिए ऐसी शेप में तालाब बनाया जाए कि वो कभी न टूटे। जैसे अंडा को अगर उस तरह से हम करेंगे तो बल का नियम ऐसा है कि वो कभी नहीं टूटेगा, तो अंडाकार शेप में बनाए जाते हैं। इसीलिए उफरे खाल में आज 30,000 से अधिक जल तलैया बनी है, लेकिन एक भी जल तलैया कभी नहीं टूटी। वो भले मिट्टी से भर जाएगी पर टूटी नहीं है, उनका शेप ऐसा दिया। और ये बड़ी सरल विधा है, इसको गांव का आदमी आसानी से समझ जाता है। एक डंडा दिया जाता है और एक कढ़ाई नुमा, उसको कहा जाता है कि कढ़ाई की तरह आपको बनाना है, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, खाली खोदना है और कढ़ाई की तरह इसको बनाना है। नेक्स्ट, अब ये जल तलैया जब बनती हैं तो महिलाएं इस काम को बड़े सुंदर ढंग से कर लेती हैं। गांव में अधिकांश महिला मंगल दल हैं। महिलाओं के अब तो खैर उत्तराखंड सरकार ने इसको मनरेगा में भी स्वीकृति दे दी है, पॉलिसी में रख दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह पॉलिसी में मनरेगा के भीतर इस जल तलैया को रखा गया है। तो ये जल तलैया क्या है कि एक जल तलैया, एक महिला एक फावड़ा लेकर चलती है और आराम से 2-3 जल तलैया बना देती है। तो ये इस प्रकार की एक सरल टेक्निक है और आकर्षक है, और धरती को बहुत कम नुकसान करती है, और हमेशा संरक्षण के लिए कंजर्वेशन का काम करती है। इसमें कहीं कोई मिट्टी बह नहीं रही है, वहीं पर इकट्ठा होकर के वो मिट्टी रह जाती है। नेक्स्ट, अब ये जल तलैया जब बारिश आती है तो बरखा के जल से ऐसे करके भर जाते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से ये पानी से भरे हुए हैं, और तरह तरह के पेड़ हैं, लेकिन इनमें ये घास उगने के कारण इनमें कभी आग नहीं लग सकती। आग लगने का इनमें अर्थ ही नहीं है, क्योंकि इतनी नमी चारों ओर रहती है कि अगर नीचे से कोई आग लगाएगा भी तो भी नहीं। तो ये पाइन की जो निडल होती हैं ये बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं। पर उफरे खाल के जंगल पिछले 40 सालों से अगर सुरक्षित हैं तो उसका कारण मुख्यतः ये नमी है, उनका नमीदार होना है। इन तालाबों का उनके भीतर लगातार तालाबों का होना है,
जिसके कारण कि वहाँ के जंगल सुरक्षित रहते हैं। जंगलों के सुरक्षित रहने से वहाँ गर्मियों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चिड़ियाएँ, पशु पक्षी उन जंगलों के भीतर आ जाते हैं और जंगल का एक पूरा जो जीवन होता है वहाँ जीवित मिलेगा, जीवित रहता है। नेक्स्ट, ये जल तलैया बड़ी श्रृंखला में बनाई जाती हैं। बहुत एक ही पहाड़ के ढाल पे देखो 1 2 3 ऐसे 2 2 3 3 4 4 मीटर की दूरी पे ये बड़ी संख्या में 10,000 5,000 एक पानी के वाटर सोर्स के ऊपर बनाई जाती हैं, ताकि जब ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं तो वाटर सोर्स को बहुत मजबूत करते हैं और वाटर सोर्स को सूखने से बचाते हैं। इसीलिए आज जब सब जगह से जल के स्रोतों की सूखने की खबर है, तो ऐसे में कि हमारे उफरैंखाल के क्षेत्र से नदी के निकलने की खबर आती है। उसका कारण सिर्फ ये जल तलैया हैं जो वर्षा जल को रखते हैं, क्योंकि पानी का स्वभाव तो हमेशा नीचे जाने को होता है और पानी आप प्राप्त कहाँ से करेंगे? आसमान से ही करेंगे। पानी जब आसमान का आएगा और उसको आपने रोकने की, थामने की व्यवस्था कर रखी है, संभालने की व्यवस्था कर रखी है, तो भूजल भी मजबूत होगा और जो जल स्रोत है वो भी मजबूत होगा और जिस जगह पर आपने उसको रखा है उसके चारों ओर का पूरा जीवन मजबूत होगा। यानी वहां पर पेड़ लौटेंगे, पक्षी लौटेंगे, घास लौटेगी, वहां का पूरा जल से पूरा जीवन मजबूत हो जाता है। जल विहीन जीवन सूख जाता है। इसलिए पानी, जब से यहाँ पर पानी का काम हुआ, शुरू में तो लोग बड़े दूर रहते थे कि पानी के गड्ढों से क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया तुरंत समाज इसमें लग गया कि ये पानी ही है, ये जल तलैया ही है जो हमारे स्रोत को जिंदा रखे हुए हैं, हमारे गाड गदेरों को यानी छोटी छोटी नदियों को जिंदा रखी हुई हैं और हमारे जंगलों को आग से बचा रही हैं। नेक्स्ट, ये एक नदी का एक जहां पर ये बड़ी पूरी हमारा जो ये क्षेत्र है उसका जल तलैया का उफरैंखाल के पास, जहां पर जिससे पूरा एक जहां पर देखते हैं कि एक वाटर सेट का इलाका जब कहीं पर इकट्ठा होता है, नीचे को एक वाटर सेट का इलाका, एक पंडाल का इलाका, तो वहां पर हम एक छोटा सा ऐसा एक जलबंद बना देते हैं, वाटर बॉन्ड बना देते हैं। इस पर थोड़ा बहुत खर्चा होता है जो हम लोगों को इधर उधर से कहीं से इनाम किताब या किसी तरह से आता है, तो उसको इकट्ठा करके लोगों के प्यार से इसको इकट्ठा कर देते हैं। इस दीवार के बनने से एक दीवार के बनने से ही इसके भीतर 4 लाख 5 लाख लीटर पानी जमा हो गया और वो 4-5 लाख लीटर पानी से एक जो धारा बनती है वो साल भर के लिए बहती रहती है। ये तो उफरैंखाल पर 6000 फीट की ऊंचाई पर इकट्ठा एक स्रोत है, जहां पर कि जिसको कि जो लैंड सेटलमेंट रिपोर्ट है 1962 की और उससे पहले की, उसमें उसको एक सूखा रौला यानी सूखी नदी, एक सूखी नदी के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन आज इसमें साल भर पानी रहता है और हमने इसको नाम दिया है गाड गंगा। तो आज ये गाड गंगा जो है, इससे 25 फैमिली को, विलेज की 25 फैमिली को हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत इस पर एक योजना बनी है और सबके लिए पानी जाता है और इसमें 6 लीटर प्रति मिनट 6 LPM का पानी ठेठ जून और दिसंबर के महीने में भी जिंदा रहता है। तो एक नदी स्रोत का तैयार होने में हमको करीब 30 साल लग गए और वो भी तब कि जब इस पर लोगों का, आपने इतनी जल तलैया देखी होंगी, ये बड़े काम को इसको देखा होगा, ये आपने इसमें देखा होगा कि कहीं कोई पॉलीथीन नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कहीं कोई कचरा नहीं है। एक आदमी के उसे ये करीब 25 30 40 हजार हमने जल तलैया बनाई हैं और सारी सुरक्षित हैं। तो ये अगर लोगों का प्यार इसमें ना आए तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये लोगों के प्यार से जो काम खड़ा होता है और लोग उस काम को प्यार देते हैं जिसमें पवित्रता हो, जिसमें उनकी आवश्यकता हो और जो सरल हो, उनके जीवन के लिए जो बहुत सरल हो और उनके जीवन को सरल बनाता हो, सहज बनाता हो। क्योंकि हमारा पूरा जीवन, गांव का जीवन पानी और जंगल पर आधारित है। पानी और जंगल के काम को इसलिए लोगों ने अपना प्यार दिया और ये दोनों काम लोगों के प्यार से वहां पर मजबूती से खड़े हुए हैं। नेक्स्ट, ये एक पुराना विधा थी हमारे उत्तराखंड में, इनको बोलते हैं नौला। ऐसे हमने 25 नौले भी बनाए हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैं ये आपको एक नौला दिखा रहा हूँ, ये करीब 600 साल पुराना है
और मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे सनातन समाज में 600 साल पहले भी पानी के संरक्षण के लिए कैसी रचना बनाते थे। आज के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है हमारे, चाहे IIT हो, चाहे इंजीनियरिंग की कोई भी विधा हो, वो ऐसी रचना खड़े करने में अपने को बहुत कमजोर पाएंगे कि जो 600 साल की गारंटी दे सके, ये 600 या 1000 साल की गारंटी दे सके कि 1000 साल तक हम हिलने वाले नहीं है, 1000 साल तक हम पानी देते रहेंगे गांव को, समाज को। ऐसी रचना समाज जानता था और समाज बनाता था। ऐसे हमारे उत्तराखंड में अकेले अल्मोड़ा शहर में ही 360 नौले का जिक्र है। जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली में 300 तालाबों का जिक्र है, आज कोई तालाब नहीं। ऐसे ही अल्मोड़ा में 360 नौलों का जिक्र है, आज वहां पर केवल 16 नौला जिंदा है। और ये रचना आज हम भूल गए, अपने शिल्पियों को, इस तरह के लोगों को हम भूल गए। आज आवश्यकता है कि ऐसे जो शिल्प थे, ऐसा जो हमारा जो एक वो थी कल्चर था, ऐसा जो हमारी एक विधा थी, विज्ञान था, जिस विज्ञान पर हमारा गांव खड़ा हुआ, जिस पर हमारे समाज खड़ा रहता था और साल भर पानी पीता था, भूजल का संरक्षण है। ये भूजल का संरक्षण का तरीका है। ये नौले कोई स्रोत नहीं होते, ये भूजल को संरक्षित करते थे। ये जमीन के भीतर बने हुए आकार और रचनाएं। और भूजल एक तरह का गुल्लक है, गुल्लक से तुम निकालते जाओ और उसमें डालो कुछ नहीं तो गुल्लक एक दिन खाली हो ही जाएगा। तो ऐसे ये रचनाएं जो थी, ये भूजल को ऐसे तैयार करती थी कि ऊपर चाल खाल बना दी और नीचे नौले बना दिए। ऊपर सबसे ऊपर जंगल, फिर चाल खाल, फिर नौले या धारे। तो ऐसे करके हमारे पानी के स्रोत, पहले हिमालय में पानी देने वाला समाज था, ये नदियों वाला समाज था। अब नदियों पर संकट, गांवों पर संकट, स्रोतों पर संकट इसीलिए है कि पानी के स्रोत और धारे, नौले जिन चीजों से हमारे मजबूत होते थे, उन बुनियादी पकड़ को हमने कमजोर किया। तो उसी ओर ये उत्तराखंड के छोटे से काम ने अपना ध्यान लगाया, जल तलया बनाकर और ये धारे नौले बनाकर। ये बड़ी सुंदर रचनाएं हैं। हमारी कोशिश है कि इसको फिर से ऐसे भूजल के जो ये संरक्षण के तरीके हैं, इनको भी हम लौटाएं। हमने 25 के करीब ऐसे भी नौले बनाए हैं। ये अद्भुत रचनाएं हैं, नाभि के आकार की बनती हैं। ये नीचे से सीढ़ी करके, और सब कच्ची है ये, और इनमें कोई सीमेंट नहीं, कोई चीज नहीं, एक स्थानीय मिट्टी से, पत्थरों से तैयार की जाती है ये रचनाएं। अद्भुत। राजस्थान में टाके इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम में एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी, और वो घटना ये घटी कि हम तो काम कर ही रहे थे, लेकिन 2000 में 1999 में एक घटना घटी कि हमारे यहाँ एक FAO की टीम आई, और FAO की टीम के साथ एक वर्ल्ड बैंक की चीफ भी आई, जर्मनी की रहने वाली थी वो, वेंडा। और उन्होंने जब हमारे यहाँ काम काज को देखा तो उन्होंने कहा हम आपको कुछ 1200 करोड़ रुपया ऑफर करते हैं, आप इस काम को पूरा फैलाइए। हमने उनको हाथ जोड़े और हमने कहा आपने इतना अच्छा हमको आदर सत्कार किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम पैसा नहीं लेंगे। वो छोटी सी खबर उस समय नवभारत टाइम्स में लगी थी, और उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संघ प्रमुख थे KC सुदर्शन जी, वो उन्होंने जम्मू में वो खबर पढ़ी और अपने आप वहां से उस खबर से को पढ़ने के बाद कार्यक्रम तय करने को कहा कि भाई ये उफरैंखाल कौन सी जगह है, कहाँ है, और ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रकम लेने से मना किया, और मेरा कार्यक्रम वहां रखो। और तब हम तो गांव के लोग थे, हमें इस तरह से संघ के बारे में भी कोई परिचय और ये इस तरह का गांव में होता नहीं। लेकिन जब ऊपर से कार्यक्रम आया तो यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उत्तराखंड में, दिल्ली में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और ये भी हमको जानकारी नहीं थी कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस तरह से संघ के प्रमुख आए तो उनके आगे खड़े ही रहते हैं। तो अब जब ये कार्यक्रम उनका आया और तरह तरह से लोग आने लगे और ये सब हुआ, तो फिर हम बड़े प्रसन्न हुए। और हमारी एक सड़क छूटी हुई थी, तब चीफ मिनिस्टर ने कहा हम क्या करते, हमने कहा सड़क बना दो, तो वो सड़क बनी।
और 2000 में 7, 8, 9 अप्रैल को संघ के प्रमुख ने एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन 3 दिन उफरे खाल रहे। सुदर्शन जी के आने से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। कोई परिचय पहले का नहीं था, लेकिन बहुत सरल, बहुत सज्जन और इतना शक्तिशाली आदमी कि 2 सरकारें आगे नतमस्तक हैं, पर कहीं उनमें कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था। बहुत सरल, बहुत सहज, एक महान व्यक्तित्व था उनका। तो उनके आने से हमारा पूरा हमें बड़ी ही इस कार्यक्रम को गौरव मिला। पूरे देश में ये फैला और तब से कई लोग इसमें आने लगे। उस समय के ये जो इसमें कई लोग दिख रहे हैं जो आज देश में कोई मंत्री हैं, कई बाद में कोई मुख्यमंत्री बन गए, कोई ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में हैं, कोई संगठन मंत्री हैं। इस तरह से बहुत बड़े बड़े पदों पर आज ये लोग हैं। उस समय वो उनके साथ आए थे। तो ऐसा किसी कार्यक्रम का मैं 3 दिन रह करके उन्होंने भी इस कार्यक्रम को जब किया, तो ये एक परिवर्तन आया था इस काम में कि कर्म की शक्ति ने इतने बड़े महापुरुष को, महान व्यक्ति को स्वतः ही उस जगह पर खींचा। तो ये एक बड़ा उस समय का योगदान था। अब एक छोटे से क्लिप एक में मन की बात का, ये उनका वो पेड़ लगाए, उनके द्वारा उस समय लगाए गए 2000 देवदार के पेड़, उनके साथ जितने लोग आए आज उपरे खाल में पूरी तरह से जिंदा है। नेक्स्ट, ये मन की बात का आखिर करते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आवाज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वासुदेव जी, आपकी पूरी टीम, प्रकाश मैठानी, आप सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों ने इस छोटे से कार्यक्रम को देखा, अपना प्यार दिया, बहुत धन्यवाद। भारती जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। आपके जो सहकारी थे उनको भी धन्यवाद। आपका बहुत ही अच्छा आवाज़ और रिकॉर्डिंग अच्छा था। पता नहीं आपने क्या स्पेशल किया, नहीं तो हमें पॉडकास्ट में बहुत समय परेशानी होती है, लेकिन आज सुनने को बहुत अच्छा लगा। और आपके स्लाइड्स, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बढ़िया है। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत आगे गए हैं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना पुराना 1981 से लेके फोटोग्राफ्स वगैरह देख के बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो नवला का बताया आपने, 600 साल पुराने हमारे पूर्वज कैसे तालाब बनाते थे। अनुपम मिश्रा जी का एक किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब, उसकी याद आई। उन्होंने अच्छा राजस्थान का डॉक्यूमेंटेशन किया है। मुझे विश्वास है आपने भी इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर किया होगा, नहीं तो मैं आपको आग्रह करूँगा कि आपके उत्तराखंड के ऐसे जो नवले हैं उसका भी एक बहुत बढ़िया किताब आपने निकालना चाहिए, तो आगे आने वाली पीढ़ी को लोगों को समझ में आएगा इसके बारे में जी। मैं आप और एक जानना चाहता हूँ, आपका नाम भारती टाइटल आपको किसी ने दिया क्या? जन्मजाति भारतीय टाइटल है? क्योंकि हमारे तमिलनाडु में सुब्रमण्य भारती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। एक और थे पहले, धर्मवीर भारती।
हाँ, धर्मवीर भारती, वो तो बहुत अच्छे लेखक थे और ये तो ही वॉज एडिटर ऑफ मैगजीन ऑल्सो, या धर्मवीर भारती। हाँ, तो मैं जब 9th 10th में पढ़ता था तो 10th में ये नाम लिखा जाता है तो मैंने अपने नाम के आगे लिख दिया ये। ओह बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी जी। बाकी जो लोग हैं अपने को कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम भारती जी, मैं रघुनंदन हूँ जी। आपका जो प्रेजेंटेशन देख के भी मुझे हम दोनों को पहाड़ों से बहुत लगन है। हम लोग कश्मीर में 4-4.5 साल वहां थे विवेकानंद केंद्र के सेंटर में, तो हमें उधर की याद आई। लेकिन ये जो काम आपने किया है अद्भुत है और मुझे लगता है इसको हम लोगों को फैलाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े लोग जब काम शुरू कर देते हैं तो हमारे कन्नड़ में कहने कई पुण्य, मतलब वो हाथ का जो गुण होता है वो अच्छा होता है, वो जो भी बोते हैं उसका फल आता है, फल पूरित होता है। तो आप जैसे व्यक्तियों को ये जरूरी है कि भी ऐसे इंस्पायर करते रहें। और बहुत सारे अभी हम लोग सुन रहे हैं कि भाई जोशीमठ में अलग अलग जगह में बहुत सारा लैंडलाइन बहुत नुकसान हो रहा है। शायद अभी समय हो गया कि हम बड़े बड़े डैमों को बंद कर दें और ऐसा काम शुरू कर दें, वो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा जी। वो जो यहाँ केरल, हम लोग केरल में हैं, यहाँ जानवर और मनुष्यों का कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई जंगलों में अगर उनको पानी मिल गया तो वो गांव की तरफ आएंगे ही नहीं है। तो ये जो क्योंकि अभी हाथी आ रहे हैं और अभी बहुत नुकसान भी कर रहे हैं और इसका ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, कभी जमाने में तो एशिया का ही बड़ा पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। आपने सुना कभी कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम? जी सुना है, उनके किताबें भी पढ़े हैं, जिम कॉर्बेट की किताब। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सब बहुत ज्यादा संख्या में हाथी हैं और बाकी तो है ही है, क्योंकि 250 से लेकर 300 तक टाइगर हैं। तो टाइगर का रोज का भोजन कितना हिरन चाहिए वो चाहिए। लेकिन वहां चूंकि पार्क के भीतर उनके लिए पानी के पीने का पूरा प्रबंध होता है, तो इसलिए गर्मियों में वो बाहर नहीं आते पार्क से। यही बात जी। जो आप कह रहे हैं ना कि हम जंगलों में हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें तो रहने लग जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ये। मतलब अभी लगभग कोच्चि जैसे सिटी के पास आने लगे टाइगर्स आने लगे, तो वास्तविकता में उनको भी पानी चाहिए, उनको भी संरक्षण चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत समय हो गया कि ऐसे शुरुआत करने का। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी, मैं आपके इलाके से हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। तो एक काश हम लोग आपके एरिया में आके थोड़े दिन गुजार सके। प्रकाश जी और भारती जी नमस्कार, प्रणाम। आप सबका विवेकानंद केंद्र का मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग जरूर आइए। सितंबर के बाद कार्यक्रम रखना, 15 सितंबर से पहले नहीं, 15 सितंबर से के बाद, क्योंकि 15 सितंबर से पहले यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होती हैं। जगह जगह वर्षा के कारण उनमें बहुत दिक्कतें रहती है। पहाड़ों में ऊपर से भी पत्थर आ जाते हैं, कई घटनाएं आप देख ही रहे होंगे। 15 सितंबर के बाद आप कभी कार्यक्रम रखें, विशेष करके अक्टूबर और नवंबर तो यहाँ दर्शनीय हो जाता है, बहुत ही दर्शनीय। थोड़ा ठंड रहती है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये तो जरूर है। धन्यवाद, बहुत बहुत, हम लोग अवश्य आएंगे। और प्रकाश जी इसको अरेंज करेंगे, ठीक है? जी जी जी। भारती जी नमस्ते, मेरा नाम संजय बैनर्जी है, लेकिन मैं यहाँ कोयम्बटूर में माता अमृतानंदमयी मठ का यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जानकारियां आपने दी। और जो ये छोटी छोटी जलताल से जो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इन्हें नरमी होती है तो फॉरेस्ट फायर नहीं आता है, मतलब ये आग नहीं लगती है। तो मेरा एक सोच ऐसा है कि जैसे हम सुनते हैं कि कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया ये जगह में ये बहुत फायर होता रहता है, तो क्या वहां हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा करो तो फायर कम हो जाएगा? ये बिल्कुल
बिल्कुल कैलिफोर्निया में तो ये बहुत ही सूट करेगा। अच्छा, हाँ, वहाँ के पहाड़ों, क्योंकि फ्रांस के पहाड़ों में फ्रांस की एक टीम आई थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने अपने वहाँ पहाड़ी इलाके तो दुनिया के बहुत से हिस्सों में है ना, हाँ। तो वहाँ के इंजीनियरों ने इसको बहुत पसंद किया, ये जो फ्रैंकल का प्रयोग है। तो ये तो हमारा एक देन हो सकती है सारी दुनिया के लिए। जी जी जी। तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, देखता हूँ कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है जी कि हम तमिलनाडु में हैं और यहाँ मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ये रेन शैडो एरिया है, मतलब बहुत बारिश बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तो कोशिश करते हैं कि जो भी पानी आए उसकी संरक्षण की जाए। तो आपने बताया कि बिना कोई पॉलीथीन, बिना कोई सीमेंट से हम उसको मतलब तालाब को बना सकते हैं और उसमें पानी रोक सकते हैं। तो झारखंड की एक हमारे इसी ग्रुप में आया था कि लोग क्या करते हैं कि पत्ता और मिट्टी के 3 लेयर बनाते हैं, जिससे वो पानी नीचे न जाए, ऊपर ही रहे इसको करने के लिए। ऐसा कोई उपाय क्या आपको मालूम है? वो अलग अलग, लेकिन अब मिट्टी कहीं गोबर से भी करते हैं लोग, गोबर से भी लीपते हैं। पहले मिट्टी खो देते हैं, फिर गोबर से लीप देते हैं, ऐसा भी करते हैं किसी किसी इलाके में। वो ऐसे इलाकों में होता है कि जहाँ की मिट्टी ऐसी हो कि जिसमें पानी बिल्कुल नहीं टिक सकता। तो कई जगह ऐसी मिट्टी होती है ना, उसमें पानी अटकने के लिए थोड़ा सा, और ये जो मिट्टी है वो पहाड़ों की मिट्टी तो एकदम इसको बोलते हैं एक प्रकार की चिकनी मिट्टी। अच्छा। तो ये एक मतलब चिपकने वाली मिट्टी है, ये चिपकी अपने में ही एक चिपक बना देती है। लेकिन बहुत जगह नहीं होती। अब राजस्थान में भी ऐसा करते थे कि वहां भी, राजस्थान में भी बड़े बड़े तालाब बने, तो वो तालाबों की मिट्टी तब तक खोदते थे जब तक वो चिपड़ी मिट्टी ना आ जाए, चिपक वाली मिट्टी। या फिर पुराने तालाब की मिट्टी ला करके नए तालाब को जहां बनाते थे उस पे भी लीप देते थे, तो उस पर उसको ऐसा भी करते थे लोग। तो हर समाज ने अपने तरीके से अपने यहाँ पानी के अटकाने की, थामने की विधि बनाई, लेकिन उसमें उन्होंने सीमेंट का या इस तरह का प्रयोग नहीं किया। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, मतलब वहीं के पत्तियों को, मिट्टी को, गोबर को संजो करके, जोड़ करके तालाब बनाए। तो वो उस पानी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्राकृतिक ही रहेगी जी। और जो अगर आपने उसमें सीमेंट वगैरह कुछ लगा दिया तो आप देखना, सीमेंट की तो ऐसी भी उम्र नहीं होती, एज बहुत कम है इसका अगर आप कोई हौद बनाएंगे तो आप, मुझे नहीं मालूम कि देश में कोई 100 साल पुरानी सीमेंट की हौद पानी पिला रही है। इसकी टंकियां भी 50, 60, 70 साल में फिर खत्म हो जाती हैं जी। तो ये काम आप जितने अपने यहाँ के ट्रेडिशनल तरीके से जुड़ेंगे, आपका काम उतना आगे निकल जाएगा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आप सबका बहुत धन्यवाद, प्रणाम वासुदेव जी। भारती जी, और एक प्रश्न पूछना था। विवेकानंद केंद्र का सबसे ज्यादा काम 60-70% अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा। और अरुणाचल भी वो जो आपका टेरेन है वैसा ही है, तो वहां भी आपका जैसा काम हो सकता है क्या? अरे भाई, अरुणाचल प्रदेश में मुझे 2-3 बार बुला गया। वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के जितने भी IAS अधिकारी हैं, सबके बीच में मेरा कार्यक्रम रखा 2 बार। बहुत अच्छा। हाँ। और वहाँ की बड़ी गजब स्थितियां हैं, बहुत सुंदर काम हो सकता है वहाँ पे। और आपको आश्चर्य होगा, वो क्या नाम कहते हैं, वो जो अपना चेरापूंजी है वो अरुणाचल में ही तो है, जहाँ सबसे ज्यादा बरखा वाला क्षेत्र माना जाता था। हाँ, मैं बोलने वाला था, वो चेरापूंजी के बाद भी वहाँ पानी की समस्या हो गई है। हाँ, तो वो आपका विवेकानंद, मैं एक बार गया था 4-5 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल पहले, वो विवेकानंद स्कूल है वहाँ पर एक, वो रामकृष्ण मिशन का है, वो वहाँ का। हाँ, रामकृष्ण मिशन का। वो गर्मियों में बंद पड़ा था, इसलिए बंद, और उसके बाहर लिखा था पानी की कमी के कारण इसे बंद किया जाता है, बंद किया गया है, छुट्टी की गई है इसमें। तो अब चेरापूंजी में जो स्कूल है वो पानी की कमी के कारण क्यों बंद हुई? इसलिए हुई कि पानी तो उतना ही आता है, वहाँ सबसे ज्यादा आता है, लेकिन पानी आता है और गर्र से नीचे बांग्लादेश भाग जाता है, वहां तो रहता नहीं है। सही बात। तो बस पानी आया और सीधे बांग्लादेश भाग गया, और फिर वो रह जाते हैं सूखे पहाड़। वहां तो सबसे अच्छा हो सकता है ये काम, बहुत। और गवर्नमेंट ने, आपने सुना कि कुछ काम शुरू किया है क्या?
हाँ, गवर्नमेंट में वहां मनरेगा में हमने इस पर बहुत जोर दिया और उनकी जो दो बैच एक पीसीएस अधिकारियों के एक आईएएस अधिकारियों के बीच में मैंने इस प्रेजेंटेशन को रखा। बहुत लंबा प्रेजेंटेशन था वो, तो डेढ़ घंटे। उनका एक फिक्स अलग होता है, भारत सरकार से आती है वो गाइडलाइन। तो वो बहुत अच्छा। और कभी अगर ऐसा होगा तो शिलोंग चलने, कोई अगर कार्यक्रम ऐसा होगा आपका, तो वहां मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा। नहीं, मेरा आज का बहुत संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे याद आया कि आपका जैसा काम वहाँ भी होना चाहिए। तो पानी की समस्या, हमारे भी बहुत सारे स्कूल है वहाँ। अच्छा, पानी की समस्या है। अच्छा। प्रणाम सभी को। मैं सुन रहा हूँ और बहुत प्रसन्नता हो रही है। और बस यही कहता हूँ, मैं भी उत्तराखंड में एक 7-8 दिन के लिए गया था। तो जो कुछ ये बर्फीली पहाड़ियां और ये जंगल और ये जो दिख रहे थे, वो सारा प्रत्यक्ष देखने का मुनस्यारी जगह गया था। वहां से ये सारी बर्फीली चोटियां वगैरह देखी थी और बहुत सारा ज्ञान हो रहा है, सुन रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ, मुनस्यारी के आगे जो आपने पंचाचूली देखी, उसकी वो पहली वाली स्लाइड में पंचाचूली भी थी। हाँ, तभी मुझे वो याद आया। मेरे धर्मपत्नी को भी बुला के वो बताया कि देखो हम यहाँ गए थे, दिख रहा है करके। अब आप जब उपरेखाल आएंगे तो फिर पंचाचूली को देखेंगे। जरूर हम ये वासुदेव जी के साथ हम जरूर हाँ, पूरी टीम आई है। आप सब लोग साथ कार्यक्रम बनाइए, प्रोग्राम बनाइए। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक। प्रकाश जी, आप कंक्लूड कीजिए। हाँ, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा और मुझे तो भाई साहब को सुनना हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता रहा है। और अब तो लगभग 50 वर्षों का संपर्क जीवन में हो गया है और उनके कामों को देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छे सकारात्मक और रचनात्मक जो प्रक्रियाएं उन्होंने शुरू की, आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनके काम को अच्छी तरह से आज उसमें उसको माना जाता है। और मुझे याद है कि भाई साहब की श्री अनुपम मिश्र जी से बहुत अच्छी मित्रता भी रही थी अपने टाइम पर, जब ये लोग चिपको आंदोलन में काम करते थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक तालाब आज भी खड़े हैं, उसमें भारती जी भाई साहब के कामों का जिक्र भी किया हुआ है। और जिस नम्रता के साथ ये सारा काम किया गया सरकार के कम से कम हस्तक्षेप में, ये अपने में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ दिस वर्क इज दैट दिस हैज बीन डन through people's participation, despite the fact that a lot of politics at the local level and that bringing people together has always remained a major issue. तो भाई साहब का इस मामले में एक महान योगदान रहा है। हम लोग तो हमेशा से देखते रहे इनके कामों को। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर इस तरह के जो अनुभव हैं, इनको विद्यालयों के कैरिकुलम में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। और जैसे वसुधा की एग्जीबिशन में भी परहैप्स एक पैनल पर हम काम कर सकते हैं कि पानी के कंजर्वेशन के लिए जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, उसमें भी उत्तराखंड में किस तरह से ये काम होता रहा है। कुल मिलाकर के भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आग्रह स्वीकार किया और सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
से ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।